कुछ समय पहले तक नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट में लग्जरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे, लेकिन लास्ट 3-4 सालों में नोएडा में बैक टू बैक काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जिन्होंने लग्जरी कैटेगरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नोएडा को एक नई पहचान दी। जैसे जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे के पास बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिस सेटअप करना शुरू किए, उसमें काफी सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स भी क्रिएट होना शुरू हुई और उसके साथ ही डिमांड फॉर लग्जरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स सर्ज्ड ड्रास्टिकली। Many luxury projects in Noida, including Gulshan Dynasty, County 107, M3M Cullinan, Max Estates 128, Godrej Tropical Isle, Experion Elements, Godrej Jardiniya, Godrej Woods, and others are nearly sold out, indicating a significant rise in demand for luxury group housing in the region. While the majority of buyers in this segment come from business background, and Gurugram still leads Noida in terms of high-paying job opportunities, the upcoming Jewar Airport and the extensive infrastructure development projects around it are set to change the landscape, with 100+ major companies, including the Big Four, planning to set up offices near the upcoming airport. Noida's real estate market is poised to become a serious competitor for Gurugram in the next 20 years. Welcome to another episode of Realty Unplugged by White Hat Realty. In today's video, we will be talking about yet another ultra luxury project that's set to launch soon. And what makes this even more exciting, it's from the real estate giant Godrej. फिलहाल प्रोजेक्ट अभी लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेंटेटिव डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। आज के इस एपिसोड में हम प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, लोकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रोजेक्ट की प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग पर भी बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट द प्रोजेक्ट अनकवर। लग्जरी प्रोजेक्ट दैट्स सेट टू लॉन्च सून एंड व्हाट मेक्स दिस गोदरेज का ये अल्ट्रा लग्जरी अपकमिंग प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 44 में 6.5 एकर्स की लैंड पर डेवलप होगा। गोदरेज को ये लैंड नोएडा अथॉरिटी से मार्च 2024 में अलॉट हुई। इस लैंड के लिए गोदरेज ने हाईएस्ट बिड की एंड इस डील को गोदरेज ने 506 करोड़ में सिक्योर किया। गोदरेज ने लैंड की पूरी पेमेंट अथॉरिटी को कर दी है और अब ये लैंड फुली पेड अप हो चुकी है। द लैंड पार्सल विल ऑफर अराउंड 1.4 million square feet of development potential and an estimated revenue potential of around rupees 3,000 crores. प्रोजेक्ट में साइजेस काफी बड़े होने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एकड़ अपार्टमेंट का रेशियो भी 70 के आसपास होना एक्सपेक्टेड है। टेंटेटिवली 5 टावर्स की प्लानिंग एक्सपेक्टेड है, जिनमें अप्रोक्सीमेटली 450 अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं। अपार्टमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को समझे तो प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट का मिनिमम साइज 2800 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा, विच विल बी अ 3 BHK प्लस यूटिलिटी। 4 BHK प्लस यूटिलिटी वाले अपार्टमेंट का साइज 3500 स्क्वायर फीट एंड अबव होगा। This upcoming project is set to directly compete with M3M Cullinan, offering the same level of luxury specifications. Currently, Max Estate 128 and ATS Knightsbridge are still considered Noida's most luxurious developments, primarily due to their initial apartment sizes and the apartment to acre ratio. However, it's important to note that the ATS Knightsbridge is currently undergoing CIRP proceedings, and the outcome of these proceedings will be revealed soon. The project is expected to feature a tentative height of G+40 floors with 2 apartments on each floor. Each tower is likely to have a total of 4 elevators, including a service elevator. However, these are the tentative details and will be only confirmed post-launch. This project will serve as an upgrade to the recently launched Godrej Jardiniya by Godrej Properties. It is expected to feature high-end finishes, including luxurious Italian marble, a VRV air conditioning system, and many other premium specifications. Project के सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं एंड सभी डॉक्यूमेंट्स रेरा में सबमिट भी किए जा चुके हैं। रेरा अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बिफोर द एंड ऑफ December 2024. The project is supposed to get launched in the first week of January. One drawback of Godrej's project has often been the lack of efficient floor planning, particularly in the living spaces, which tend to be less appealing to buyers. However, we hope this time they launch a project with improved floor plans. Luxury project that's set to launch soon, and what makes this गोदरेज के इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट प्लानिंग कैसी होगी, ये तो हमें प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद ही पता चलेगी, लेकिन प्रोजेक्ट की लोकेशन अनडाउटली नोएडा की सबसे प्राइम लोकेशन में से एक है। नोएडा गोल्फ कोर्स से ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट बाउंड्री शेयर करती है। द प्रोजेक्ट्स लोकेशन इज फुली डेवलप्ड, ऑफरिंग एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। गोदरेज प्रॉपर्टीज हैज सिक्योर्ड दिस अलॉटमेंट फ्रॉम वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पार्सल्स ऑफ लैंड इन दिस प्राइम एरिया, मेकिंग इट अ हाईली कवेटेड डेवलपमेंट। अगर आप दिल्ली के कालिंदी कुंज की तरफ से आते हैं तो महामाया फ्लाईओवर
फ्लाईओवर पर टुवर्ड्स बोटानिकल गार्डन ड्राइव करना होगा। महामाया फ्लाईओवर को क्रॉस करके आप आम्रपाली रोड पर पहुंच जाएंगे। बोटानिकल गार्डन पहुंचने से जस्ट पहले एक यू टर्न आएगा। यू टर्न लेकर आप रोड के ऑपोजिट साइड पर आ जाएंगे। यहाँ से 100 मीटर्स के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है और यहाँ से फिर फर्स्ट लेफ्ट लेने के बाद आप प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंच जाएंगे। महामाया फ्लाईओवर के बिल्कुल पास होने की वजह से ये प्रोजेक्ट सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड दिल्ली तक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की प्रॉक्सिमिटी के थ्रू आपको मल्टीपल बिजनेस हब्स और रेजिडेंशियल सेक्टर्स तक आसानी से एक्सेस मिलेगा। सेक्टर 38 का गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट से एडजेसेंट ही है, जिससे प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट्स को नोएडा गोल्फ कोर्स के व्यूज एंजॉय करने का एडवांटेज होगा, बट दैट विल बी लिमिटेड टू फ्यू टावर्स ओनली, एज द मेजॉरिटी ऑफ द व्यूज आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल सोसाइटीज इन द विसिनिटी। बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। DLF मॉल ऑफ इंडिया एंड गार्डन गैलेरिया जैसे पार्टी हब एंड शॉपिंग सेंटर्स भी प्रोजेक्ट से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की लोकेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। Surrounding projects are Pearls Gateway Towers, Esotec Celestial and Omax Royal Residency and obviously नोएडा के prestigious golf course के views प्रोजेक्ट के रेजिडेंट्स के लिए एक एडेड एडवांटेज होंगे। सराउंडिंग रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के इमीडिएट सराउंडिंग में कुछ ओल्डर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो विजुअल एस्थेटिक्स को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक कंजेशन को अगर हम समझे तो प्रोजेक्ट सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। प्रोजेक्ट के आसपास कंजेशन एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम्स इनएविटेबल होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बिकम द न्यू नॉर्मल फॉर रेजिडेंट्स ऑफ नोएडा। सेक्टर 44 में इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एक्सीलेंट कनेक्टिविटी और एस्टैब्लिश लोकेलिटी का बैलेंस ऑफर करती है, व्हाइल कुछ माइनर चैलेंजेस हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट की लोकेशन डिजायरेबल है। लग्जरी प्रोजेक्ट दैट्स सेट टू लॉन्च सून एंड व्हाट मेक्स दिस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की बात करें तो दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डेवलपमेंट्स इन नोएडा रियल एस्टेट मार्केट। नोएडा में अभी तक गॉडरेज के काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिनमें से गॉडरेज वुड्स वाज पोजीशन्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ इट्स टाइम। गॉडरेज वुड्स भी पास ही नोएडा सेक्टर 43 में लोकेटेड है। करंट रीसेल प्राइसेस के बेसिस पर भी ये प्रोजेक्ट गॉडरेज के नोएडा बेस्ड सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, बट दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नोएडा सेक्टर 44 विल बी पोजीशन्ड वेल अबव गॉडरेज वुड्स एज वेल। जहां गॉडरेज वुड्स में 2 BHK से 4 BHK तक मल्टीपल वेरिएशंस हैं, वहीं गॉडरेज के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में उससे कहीं बड़े साइजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। दिस प्रोजेक्ट विल बी गॉडरेज प्रॉपर्टीज फ्लैगशिप डेवलपमेंट इन दिस एरिया, अनलाइक मेनी अदर्स गॉडरेज प्रोजेक्ट्स वेयर द कंपनी एक्वायर्स लैंड्स एंड कोलैबोरेट्स थ्रू जॉइंट वेंचर्स। दिस प्रोजेक्ट विल बी entirely constructed by Godrej itself, ensuring complete control over quality and execution without involving any JV or partnership formula. While there is not much direct competition in this immediate vicinity, but वीडियो की शुरुआत में हमने मेंशन किया था this project is supposed to give a good competition to M3M's Cullinan. It will not directly compete with Godrej Words, as Noida Sector 44 project will be positioned at a much higher level in terms of premium offerings and exclusivity. Among recently launched developments, Experion Elements stand as another competitor for this project at a much lower price point. So overall, it will be exciting to see what unique offerings Godrej brings to the table. As for the pricing, we anticipate this project to be in the same range as M3M Cullinan, around 25,000 rupees per square foot. However, to justify this premium price, Godrej will need to introduce exceptionally high-end specification and thoughtfully designed floor plans. We understand that many of you might find the project's pricing a bit high. If so, we'd love to hear your thoughts. Share your feedback in the comments on what you think about the ideal pricing should be if Godrej were to launch an ultra luxury project. One of our favorite projects, Max State 128, is also trading in the same price range, but Max State has the minimum size of 4400 square feet. So as per the current pricing, Max State में minimum investment starts at 11 crores. That's all for today's video. We will keep you updated about the project as soon as the developer secures RERA approval. Also, we'd like to mention that Godrej या किसी और luxury project में अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो White Hat की टीम आपके ड्रीम होम तक नेविगेट करने में आपको काफी हेल्प कर सकती है। We have a team of experts who can guide you well on your house hunting journey. Godrej के इस प्रोजेक्ट में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We will try to help you secure a good golf facing unit in the project. One last thing, if you find our content valuable, don't forget to subscribe to our channel. See you in the next video. Take care and goodbye for now.